God promises His presence for us, our lives. और प्रभु अपनी उपस्थिति का वादा करते हैं हमें। Hallelujah. When God promises His presence, there are some conditions to our lives. लेकिन जब प्रभु वादा करते हैं अपनी उपस्थिति का, किसी चीज का शर्त भी होता So है। turn your Bible to Exodus 33 verse 12. Straight away I'm taking you to the message this morning. और आइए सब अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे। One day Moses says to the Lord, "You have been telling me, take this people up to the promised land, but you haven't told me whom you will send with me. You have told me, I know by name and I look favorably on you." और फिर मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब मेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी शुद्धि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। And he said, my presence will go with you and I will give you rest. और यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। Amen. What a conversation with Moses. देखो कैसी बातचीत है मूसा के साथ। Moses is talking as if he's talking to his friend. मूसा ऐसे बातें कर रहा है जैसे वो अपने एक दोस्त के साथ, मित्र When के you साथ बोल रहा है। have a relationship with God, जब भी आपका एक रिश्ता है प्रभु के साथ में, you talk to God as your own. तो प्रभु से तुम ऐसे बातें करोगी जैसे वो तुम अपना है। तुम्हारा रुकने का समय खत्म हो चुका We है। waited for a long time. हम बहुत लंबे समय तक रुके रहे। You know, people waited for 400 years to listen to the good news. लोग 400 साल रुके खुशखबरी सुनने के And लिए। after 400 years, here comes John the Baptist. और 400 साल के बाद यहाँ बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला In आया। the wilderness, he's talking about the good news. और यहाँ पे जंगल में वो खुशखबरी के बारे में बोल रहा है। Repent and baptize, the kingdom of God is near. वो कहने लगा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। Hallelujah. That means John the Baptist, you go, my presence will go before you. यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, तू जा, मेरी उपस्थिति तेरे सामने सामने चलेगी। Whatever God has promised to his servant Moses, it is coming to till this generation. जो भी प्रभु ने वादा किया था मूसा से, ये आने वाले पीढ़ी तक भी यही बात अभी भी मौजूद है। Then here Moses talks to God. यहाँ पे मूसा प्रभु से बातें करता Then he है। said to him, if your presence does not go with us, I'm waiting. अभी मूसा प्रभु से कह रहा है, यदि तू आप हमारे साथ न चले, Do not bring us up from here. तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। Hallelujah. Don't make us to leave this place. प्रभु तू यहाँ से हमें जाने मत बोल। Hallelujah. You know what Moses is saying? यानी जानते हो मूसा क्या कह रहा है? God, if you don't move one step, I'm not going to move, neither you're going to push me to move. प्रभु यदि तू एक कदम भी नहीं बढ़ेगा तो मैं भी एक कदम आगे नहीं लूंगा, ना ही तू मुझे जबरदस्ती भी आगे नहीं जाऊंगा। We make lot of decisions in our lives. हमारे जीवन में हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं। Without God moving with us, we make decisions. प्रभु हमारे साथ मंडराने के बदले में हम खुद का अपना निर्णय लेते हैं। Because there is sometimes our decisions are our own will, not God's will. कभी कभी हमारे जो निर्णय है वो हमारी खुद की इच्छा है, प्रभु की इच्छा में नहीं होती। Moses had all the potential that God has given him. He can move the people, he can reach the promised land. तो मूसा के अंदर बहुत सारे ऐसी काबिलियत थी, वो लोगों को जो है वो प्रतिज्ञा की देश में ले जा सकता था। But what Moses is saying, लेकिन मूसा क्या कह रहा है? God, if you don't move, don't allow us to leave this place. प्रभु यदि तू हमारे साथ नहीं चलता है तो हमें आगे चलने की अनुमति भी मत दे, हमें आगे बढ़ने भी मत What दे। we need to learn from this, Lord Jesus, if you are not going to take one step in my life, I am not going to take my step. यानी इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह, यदि मेरे जीवन में तू एक कदम आगे नहीं लेता है तो मैं मेरे कदम को उठाऊंगा भी नहीं। Listen what he says, for now then will it be known that your people I have found grace in your sight,
except you go with us, so we shall be separate your people and I from all the people who are upon the face of the earth. 16. अभी देखो 16 वचन क्या कहता है, यह कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और मेरी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? So the लोगों ने Lord's- मूसा से कहा, ये बात मुझे बहुत पसंद है, I will also do this thing that you have spoken, for you have found grace in my sight, and I know you by name. मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। Now, what God is saying, यहाँ पे प्रभु क्या hey कहता Moses, है? I know your name. हे मूसा, मैं तेरे नाम को जानता Hey हूँ। Moses, you have found grace in my sight. हे मूसा, तुझे मेरी दृष्टि में तेज मिला है। A person who finds grace in the sight of God, God always knows his name. एक व्यक्ति जिसको प्रभु के नजरों में अनुग्रह प्राप्त हुए, प्रभु उसका नाम हमेशा याद रखता है। And then Moses said, please show me your glory. और फिर मूसा ने प्रभु से कहा कि प्रभु तू अपना तेज मुझे दिखा दे। Then he said, I will make my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious. I will have compassion on whom I have compassion. और फिर प्रभु ने उसे कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा आहा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? Surely goodness and mercy आमेन। follow me all the days of my. Can you see from where this root came and how निश्चय David is भलाई और confessing? करुणा मेरे जीवन भर सदा मेरे साथ बनी Think about रहेगी। when you found grace in the sight of God, जब देखो, जब तुम्हें प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त होता है, the goodness of God goes before you. तो प्रभु का अनुग्रह तेरे आगे आगे चलता है। And God says, when my goodness goes before you, प्रभु कहता है, जब मेरी भलाई तेरे सम्मुख होकर चलती है, I will be gracious to whom I will be gracious. जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर मैं Means, अनुग्रह for करूंगा, I will show mercy to anyone I choose. क्योंकि जिसे मैं चाहता हूं दया करना, मैं उस पर दया And करूंगा, I will show compassion to anyone I choose. और जिससे मैं चुनता हूं उस पर मैं दया कर तरस दिखाता हूं। Hallelujah. This year we are finishing in another 2-3 weeks. देखो, और 2-3 सप्ताह में ये खत्म होने वाला साल है। The year of still small voice is not over. अभी भी प्रभु की वो छोटी सी आवाज सुनना खत्म नहीं हुआ है। Till he comes in glory, this voice will be heard. प्रभु की महिमा में आने तक ये छोटी आवाज सुनाई देगी। Only thing is we need to have a deeper intimacy with the Lord. एक ही बात है कि प्रभु के साथ में गहरा रिश्ता होना जरूरी है। So what I want to tell you this morning is, तो क्या कहना चाहता हूँ मैं आज की God सुबह? wants to have a deeper relationship with Him. प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखें। Amen. Think about you're walking some places, you're a man full of grace. सोचो कि आप ऐसे चल रहे और एक ऐसे व्यक्ति हो आप जिस पूरे अनुग्रह से भरे हुए व्यक्ति। And you know what God says? Because I found grace in the sight of the Lord, जानते, क्योंकि प्रभु ने कहा कि प्रभु के नजरों में मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ है, so whatever I put my hands, I will progress. तो जो जिसमें मैं हाथ डालता हूँ उसमें मैं उन्नति Because करूंगा, I found grace in the sight of the Lord. क्योंकि मैंने प्रभु के दृष्टि में अनुग्रह पाया To है। find that grace, you need to have some homework to do. तो उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक काम करना जरूरी है। Love the Lord your God with all your flesh. हालेलुया। तू हाँ? अपने परमेश्वर को हाँ? अपने पूरे देह से प्रेम कर। ऐसा लिखा है? क्या ऐसा लिखा है? If you love your Lord with all your heart, your body become the temple of the Holy Spirit. अगर तुम परमेश्वर से अपने पूरे दिल से प्रेम करोगे तो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। Hallelujah.
Think about each one becomes the temple of the Holy Spirit. विचार करो, जब हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर बन This जाता temple है, is walking, ये मंदिर चल रहा है, meaning the Lord is walking in through the temple. यानी वो प्रभु है जो मंदिर के द्वारा चल रहे So हैं। wherever you are, the glory of God is revealed. तो जहाँ पर भी आप है तो प्रभु की महिमा प्रकट होती है। You know, in the end times, देखो अंतिम समय में God is going to remove the fear from every believer. प्रभु हर एक विश्वासी के दिल से वो डर निकाल Come देगा। on, somebody say amen. So what are you fear for? किस चीज से आप डरते Because हो? God's Spirit is going to remove the fear for your future. देखो तुम्हारा भविष्य का जो डर तुम्हारे अंदर है, प्रभु उस सारे डर को निकालेंगे। Hallelujah. God is going to pour out His Spirit with boldness and authority. तो प्रभु अपनी आत्मा एक धैर्यता और अधिकार के साथ तुम पर उंडेलने वाले God हैं। is going to pour out the wisdom upon each believer, each sons of God, each child of God. तो प्रभु अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान हर एक परमेश्वर का बच्चा और संतान के ऊपर उंडेलने वाले हैं। I used to think always, God, you have spoken to Abraham, you have spoken to Jacob, you have spoken to Isaac. When will my time come? मैं हमेशा ये बात का विचार करता कि प्रभु आपने अब्राहम से बातें की, इसहाक से बातें की, याकूब से बातें की, मेरा समय कब आएगा? I used to ask God, Moses says, I found the favor in the sight of God. Where is my favor, O God? मैं हमेशा ये विचार करता कि मूसा कहता था कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि से अनुग्रह पाया है, प्रभु मेरा अनुग्रह का समय कब आएगा? Every child of God who has found the grace of God, wherever he stands, wherever she goes, they will see wonders of God in these end times. हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी जिसने परमेश्वर की नजर में अनुग्रह पाया है, वो जहां भी जाएगा, जहां भी खड़ा रहेगा, वहां पे वो प्रभु की अनुग्रह पाएगा। Hallelujah. You know, one day there was a story. I want to tell you this story. अभी मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ, There was a beautiful kingdom. एक बहुत ही सुंदर राज्य था, In that kingdom, the king declared, और उस राज्य में राजा ने ये बात की घोषणा की, tomorrow morning 12 o'clock you all come, whatever you want from me you take it. कल सुबह 12 बजे तुम लोग आओ, तुम्हें जो भी चाहिए तुम यहाँ से उठा कर लेकर You जाओ। want silver, gold, elephant, throne, everything you take and go. तुम्हें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हत्ती चाहिए, जो चाहिए सिंहासन के पास जो भी है वो सारी चीजों को उठा कर लेकर जाओ। And next day morning, early morning, how we queue up, for the ration card. So the people of that kingdom, they just go to the kingdom of the king and they're ready to fetch everything. राशन के दुकान में खड़ा रहने के लिए कैसे हम सुबह सुबह उठकर जो है राशन कार्ड लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, वैसे ही राजा के राज्य के बाहर सब लोग लाइन में कतार में खड़े थे चीजों को लेने के People लिए। are waiting, the gate will open. सब लोग रुके हुए कि ये गेट खुल जाएगा, And early morning the gate opened. और सुबह सुबह को वो गेट खुल गया, Everybody is running to fetch in the kingdom. और सब लोग राज्य के अंदर की चीजों को उठाने के लिए भागे। They fetched the gold, they fetched the silver, they fetched the clothes, they fetched the weapons, they took the elephants and they're gone. और कि कई लोगों ने सोना लिया, चांदी लिया, किसी ने जो है हत्ती को लिया, कई ने लोगों ने कपड़ा लिया, कई लोगों ने हथियार को उठाए और वहां से वो निकल गए। And there is one guy like Judas, he took whatever upon the king, even the clothes he took and went. और एक व्यक्ति था जो यहूदा के समान था, वो राजा के ऊपर जो भी वो वस्त्र पहनता था उससे भी वो उठाकर चुरा कर लेकर गया। Hallelujah. The Raja is nothing, he is naked. अभी राजा पूरा नंगा हो गया, कुछ भी कपड़े नहीं। Palace, everything is empty. महल में सारी चीजें खाली हो गई। There was a young girl of 6 years old, she was standing there. एक छोटी लड़की थी जो 6 साल की उम्र की थी, वहां पे खड़ी थी। The entire kingdom is empty. पूरा राज्य खाली था। And the king asked this young girl, ये राजा ने जवान लड़की से पूछा, hey daughter, you didn't get anything? बेटी तुझे कुछ नहीं मिला? And you know what this daughter replied? जानती हो बेटी ने क्या उत्तर दिया? She said, I don't want silver and gold. I don't want the things of this palace, but I want the king. वो कहने लगी मुझे ये सोना नहीं चाहिए, ये चांदी नहीं चाहिए, महल की चीजें की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ राजा चाहिए। Hallelujah. She went and hugged the king. I want the king. वो जाकर राजा को गले लगाती और कहती कि मुझे राजा चाहिए। Today, can you able to say, I want Jesus. I don't want silver and gold. I don't want anything of this world, oh God. I want Jesus in my life. क्या आप
आप ये बात को कह सकते हैं, आज मुझे सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, संसार की वस्तु नहीं चाहिए, केवल मुझे यीशु राजा मेरे जीवन के लिए The चाहिए। world is driving towards all the things of the world. ये संसार की चीजें तुम्हें संसार की ओर ले जाती है। But you need the King of Kings and the Lord of Lords. You need to embrace Him. I don't want anything of this world. I want Jesus in my life. तो तुम्हें राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु को गले लगाना और कहना कि मुझे संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, केवल मुझे ये राजा यीशु चाहिए मेरे जीवन के Once लिए। in a year, Christmas comes, we want King. साल में एक बार क्रिसमस आता है तो हमें राजा चाहिए। Hallelujah. We need the King of Kings every minute in our lives. तो ये राजाओं की राजा की जरूरत है हमें हमारे जीवन में, हर जीवन के हर समय पर। Hallelujah. Hallelujah. Are you there with me? Do you want the things of the King or you want the King? क्या तुम्हें राजा चाहिए, राजा की वस्तुएं चाहिए, राजा चाहिए? Do subscribe to our channel and never miss an update from us.